نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بے شک قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بے شک شمع ختم نبوت کے پروانوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے جی اس کا عنوان ہے قادیانی کلمہ طیبہ سے کیا مراد دیتے ہیں۔ جی مرزا قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا جی تو اس سے پوچھا گیا، جی اور اس کے بعد اس کے نام نہاد جو خلیفہ تھے ان سے بھی پوچھا گیا جی کہ جب بھی کوئی نیا نبی آیا ہے جی تو اپنا کلمہ لے کر آیا ہے، جی بالکل اپنا کلمہ لے کے آیا نا۔ بالکل لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ جی تو ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ جی تو مرزے نے جواب دیا کہ ہمارا کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نہیں بدلا۔ یہ کیسے؟ جی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہوئیں۔ جی پہلی دفعہ آپ مکہ میں تشریف لائے، جی اور دوسری دفعہ نعوذ باللہ آپ قادیان میں تشریف لائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ دو بعثتیں اس لیے ہوئی کہ اللہ پاک نے جی نبوت کو اتنا زمانہ گزر گیا، جی جب گناہوں کے اندر انسانیت کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، جی جب انسانیت کو سر پیٹتے دیکھا، جی جب ہر طرف گمراہی کے طوفان چل رہے تھے، جی برائیوں کے سیلاب تھے، جی اور یہ دنیا جی برائیوں سے بھر گئی، جی تو اللہ پاک کو کسی نبی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جی اور ایک جگہ وہ بکواس یہ بھی کرتا ہے کہ اس لیے میں آیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی جو اللہ کا مشن تھا اس کو پورا نہیں کر کے گئے، استغفر اللہ ادھورا چھوڑا۔ استغفر اللہ۔ جب دیکھا جی تو رب ذوالجلال کو جی ایک نبی کی ضرورت پیش آئی، جی لیکن وہ نیا نبی کیسے بھیجتا؟ اللہ پاک نے کہا کہ میں اعلان کر چکا ہوں قرآن میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جی تو میری اپنی بات پر زد پڑے گی نا، جی جی جب میں نیا نبی بھیجوں گا، میں نے تو اعلان کر دیا کہ ختم نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ بے شک تو پھر اللہ نے سوچا اور اللہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں دنیا میں۔ استغفر اللہ اور اللہ نے میری شکل میں میرے جسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیج دیا، استغفر اللہ اور میں محمد ہوں، میں محمد ہی بن کے آیا ہوں، استغفر اللہ میں عین محمد بن کے آیا ہوں۔ جس نے مجھ میں اور محمد میں تفریق کی اس نے نہ مجھے جانا نہ محمد کو جانا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ بکتا ہے، جی اس لیے جی مجھے بھیجا گیا، جی اور میں 100% محمد رسول اللہ بن کے آیا ہوں۔ استغفر اللہ۔ میں عقل کے اعتبار سے بھی محمد ہوں، میں شکل کے اعتبار سے بھی محمد ہوں، میں نام کے اعتبار سے بھی محمد ہوں، میں کام کے اعتبار سے بھی محمد ہوں، استغفر اللہ۔ بلکہ مجھے زیادہ خوبیاں دے کر بھیجا گیا ہے کیونکہ مجھے ایک پڑھے لکھے دور کے اندر بھیجا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمارا کلمہ نہیں بدلا، ہمارا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جب لفظ محمد آئے تو اس سے مراد تم نے محمد عربی کو نہیں لینا، اس سے مراد تم نے محمد اجمی مرزا غلام احمد قادیانی کو لینا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیسا دھوکہ ہے۔ جی لفظ نہیں رکھا مردود نے، بدلا نہیں کہ نہیں چلے گا، کہ دو بعثتیں ہوئی ہیں ان کی، 2 دفعہ وہ آئے ہیں، مجھے محمد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تم نے ہمیشہ اس سے مراد محمد اجمی لینا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ قرآن میں بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں قرآن میں لفظ محمد آئے اس سے مراد میں ہوں، اب محمد مراد اس سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جہاں احمد کا لفظ آئے اس سے مراد بھی میں ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے ان کے کلمے کی حقیقت کہ اس وقت یہ کیا مراد لیتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ مرزے کا ایک مرید قاضی اکمل مردود وہ مرزے کے پاس اپنے اشعار لے کے آتا ہے۔ جی وہ اشعار کیا ہیں؟ عبرت کے کانوں سے سنیے۔ جی کہتا محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، استغفر اللہ۔ محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاں میں،
मोहम्मद को देखना हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सारी बात उसने खोल के रख दी। मिर्दे को शेर इतने पसंद आए कि उसने बड़ा खूबसूरत लिखवा के उसको फ्रेम करा के अपने कमरे में लगाया। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब ये जी दुनिया को धोखा देने के लिए कहते हैं जी कि हमें कलमा पढ़ने से रोका जाता है, कलमा लटकाने से रोका जाता है, अपने घर में कलमा आवेदा करने से रोका जाता जी 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 है। हम लोगों से ये कहते हैं जी कि इनको कोई हक नहीं है जी, बेशक अपने सीने पे कलमा तैयबा का बैज लगाने का, कोई हक नहीं है। बिल्कुल इनको कोई हक नहीं है। बेशक बेशक अपनी इबादत गाहों का, जी अपने घरों के बाहर ये अल्लाह मोहम्मद ये कुरानी आयात लिखते हैं, इनको कोई हक नहीं है। तो एक सिंपल सा सवाल करते हैं, जी एक शख्सियत है मेरी, जी एक मेरा नाम है, जी, मेरी शख्सियत और मेरे नाम को इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। दूसरा नहीं। नहीं कर सकता। और वो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल उनका सानी कौन होगा, उनकी मिसाल क्या होगी? बिल्कुल। मैं सिर्फ बताता हूँ। जी मतलब तो वैसा करो, ये कोका कोला की बोतल है ना, एक जी, बोतल बनाओ जी जी और उसका नाम कोका कोला रखो। जी जी वो तुम्हें बता देंगे जी, कि कोका कोला का ब्रांड हमारे नाम रजिस्टर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हमने खरबों डॉलर खर्च करके जी। इसका नाम बनाया है। बिल्कुल तुम कौन होते कोका कोला लिखने वाले? बिल्कुल। वो उसी वक्त आएंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, जेल में पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। बेशक। ठीक है। बिल्कुल। आपने देखा 7 बोतल है, कोई और रख सकता है 7 बोतल नाम? नहीं नहीं, मरिंडा को और रख सकता है? बिल्कुल नहीं, स्प्राइट कोई और रख सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई यहाँ पे टूटी फूटी कार बनाए बोलो हार यहाँ पे और जी। उसका नाम होंडा अकाउंट रख दे, नहीं नहीं वो रखने देगा? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, वो फौरन पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये मार्का हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बिल्कुल कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। कोई यहाँ पे देसी किस्म का शैम्पू बनाए और जी। उसका नाम रख दे हेड एंड शोल्डर, जी नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 को रखने देगा? नहीं नहीं BMW गाड़ी हो जी। और किसी छकड़े जैसे गधे गाड़ी पे उसका बोर्ड लगा दिया जाए BMW, नहीं, वो उसी वक्त पकड़ेंगे। बिल्कुल 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 ये गाड़ी इस तरह की है, ये तुम्हारी गधा गाड़ी है, इसमें ये नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। बिल्कुल इसीलिए हम कहते हैं जी। इसी तरह जी। इसमें मोहम्मद मिर्जे पे नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक 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 दुख और अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है। जी, जी। ये नहीं लग सकता। बेशक एक बेशक। जी बात है इस्तेमाल की। जी मैं आदम अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल करता हूँ, नाउजुबिल्लाह। जी नहीं। नहीं अगर कोई बंदा कहे यहां पर आके जी कि इस औरत का खामद मर गया था, जी, जी अब मैं इसका खामद बन के दोबारा भेजा गया हूं, अस्तगफिरुल्लाह। उसकी औलाद उसके साथ क्या सलूक करेगी? बिल्कुल अब इसका खामद मैं हूं, जी जी क्या सलूक करेगी उसकी औलाद उसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल यारो यहाँ पे तो एक तो नबी अलैहिस्सलाम का जी तहफ़्फ़ुज़ है, जी यहाँ पे तो कांस्टेबल की वर्दी को इतना हक है जी कि कोई शख्स कांस्टेबल की वर्दी पहन के सड़कों पे फिरे, जी उसकी शिकायत हो जाए, पकड़ लिया जाए फ्रॉड एंड फोर्जरी में, उसको उसी वक्त पकड़ के जेल में ही दिया जाता है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कि तू हकदार ही नहीं इस वर्दी का, बेशक बेशक, तू इस वर्दी का हकदार नहीं। हकदार नहीं है। जी क्यों पहनी है तूने? बिल्कुल अब को कहे कि जुल्म है जनाब, उसने पुलिस की वर्दी पहनी, उसको शौक था बड़ा वर्दी पहनने का, वो कहे मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसलिए पहन, तो मिर्जे भी कहते हैं कलमा बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। हमें कहते हैं तुम्हें अच्छा लगता है ना, अच्छा जी। लगता है तो मिर्जे पे लानत भेजो, जी। हजूर का कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम में आ जाओ, सुभान सारे घर के अंदर कलमे के फ्रेम लगाओ। बेशक कौन तुम्हें रोकता है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सारा दिन मोहम्मद पे दुरूद पाक पढ़ो, कौन तुम्हें रोकता है? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जाल शादी नहीं होने देंगे, बेशक 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 ड्रामागिरी नहीं होने देंगे। बेशक बेशक। एक सिपाही की वर्दी को जी जी ये हक हासिल है, जी उसे कोई दूसरा शख्स पहने हैं, जी उसी वक्त गिरफ्तार होगा। क्यों? जी अब क्या करेंगे? उसकी वर्दी उतरवाएंगे ना उससे, जी, जी जी। बिल्कुल अपने कपड़े पहन, जी वर्दी उतार। जी जी तो जब ये अपने घर के बाहर कलमा लगाते हैं, अपनी दुकान के बाहर कलमा लगाते हैं, जी। अपनी फैक्ट्री के बाहर कलमा लगाते जी। हैं, अल्लाह रसूल का नाम लगाते हैं, जी। कुरान की आयात या हदीस नकल करते हैं, जी जी तो हमें भी हक है ना कि हम उन्हें वहां से उतार लें। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बेशक। पुलिस के सिपाही की वर्दी जो 1000 रुपए की है, जी जी उसको तो ये हक हासिल है। जी जी और कलमा जिसकी कीमत पूरी कायनात नहीं दे सकती, बेशक। वो इनके घरों के बाहर लड़का हो। बिल्कुल अब इन्होंने कलमा क्यों लगाया है? जी। इसलिए कि लोग समझे ये मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ना, ये मुसलमान है। फैक्ट्री के बाहर कलमा क्यों लगाया है, आयत क्यों लगाई है, ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चले ये मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। बिल्कुल कलमा का यहाँ पे जी बैज लगा हो किसी के जी जी कलमे का, आप क्या यही समझेगा नहीं मुसलमान है? बेशक। ये तो बात की तहकीक है, तो कुरैद है कि आपको पता चलेगा कि ये मुसलमान नहीं, ये तो मुर्दई मुर्तद है। अस्तगफिरुल्लाह।
बिल्कुल 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 मोहतरम मेरी बात सुनिए गौर से, जी जी सिर्फ ये एक मरदूद तबका है। जी कोई हिंदू जी कलमे का बोर्ड लगाता है अपने घर के बाहर? नहीं लगाता, कोई सिख ये काम करता है? नहीं कोई ईसाई जी अल्लाह रसूल की आयात लगाता है? नहीं नहीं कोई बुद्धिस्ट, कोई पारसी जी। अपने घर के बाहर कलमा देकर लिखता है? नहीं लिखता, बैज लगाता है? नहीं। नहीं। उनका मजहब अपना है। बिल्कुल। वो शो करते हैं हमारा इस्लाम से तल्लुक नहीं, हमारे अपने अपने मज़ाहिब है। बेशक। ये यहाँ पे लगा के शो करता है कि मैं मुसलमान हूँ और असल मुसलमान ही मैं हूँ। ये जो नाम नहाते ये काफिर है सारे के सारे। बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही, ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने अर्ज किया जी कि एक मामूली कांस्टेबल की वर्दी को हासिल है कि उसे कोई पहन नहीं सकता। और मोहम्मद अरबी की नबूवत की वर्दी इतनी सस्ती हो गई कि उसे मिर्जा कादियानी जैसा चूड़ा पहन ले। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जो सारी इंसानियत उस वर्दी की गर्दरा को नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और वो चूड़ा कहता है मैंने मोहम्मद अरबी की वर्दी पहन ली है, मैं मोहम्मद अरबी बन गया हूँ। इसको ये हुकूमत भी बर्दाश्त करती है, ये मुसलमान भी बर्दाश्त करते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल। ऐसे ही, इसने बहरूप अख्तियार किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अगर जी जी आज एक पुलिस की वर्दी है, एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर है एजी ऑफिस का, जी वो एक कांस्टेबल की वर्दी पहन लेता है जी और फिर रह घूम रहा है। जी हालांकि उसे मुफाद भी कोई नहीं लेना, जी कोई फ्रॉड भी नहीं करना उसने। जी 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 ठीक है जी। उसे शिकायत हो जाए जी। उसी वक्त पकड़ा जाएगा और जेल में जाएगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बेशक तुम ऑफिसर हो, जी पढ़े लिखे हो, सारा कुछ हो, जी। लेकिन जिसकी वर्दी पहनी है वो तुम वो नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। जिसकी तुमने वर्दी पहनी है तुम वो नहीं हो। जी बिल्कुल लिहाजा तुमने फ्रॉड और धोखा किया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल तुम दगाबाज हो, मकार हो, अय्यार हो। बेशक 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 वर्दी उससे उतरवाई जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो हम बिल्कुल कलमा उतरवाएं, जी बिल्कुल ऐसा जी ही। जी कहते हैं जुल्म है। हम आयतुल कुर्सी उतरवाएं तो कहते हैं जुल्म है। जी 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 इनके घरों से, इनके घरों में जाके जी। जो इन्होंने आयात लिखी हुई है उनको महफूज करवाएं जी, तो जी। कहते हैं जुल्म है। जी 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 ऐसे ही, बिल्कुल अगर यही हिसाब हो ना जी जी तो यहाँ पर कोई जो है ना वो एसपी की वर्दी पहन के फिरेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर इजारत इनकी इधर छूट मिल जाए ना, जिस तरह इनको छूट मिली हुई है, बिल्कुल कोई डीआईजी की वर्दी पहन के फिरेगा, कोई आईजी की वर्दी पहन के फिरेगा। बिल्कुल 10-12 अच्छे भी होंगे जो पायलट की वर्दी पहन के फिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कुछ कस्टम ऑफिसर, कुछ कस्टम इंस्पेक्टर की वर्दियां पहन के फिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्या कहते हैं जी? जी बिल्कुल 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 ऐसा ही। ऐसे ही, क्या गवर्नमेंट ये होने देगी? नहीं नहीं ये तो सारा निजाम तहवाला हो जाएगा कि ये लोग मुख्तलिफ अदारों की वर्दियां पहन के आ जाए। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हम इनसे कहते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं, जी जी एक घर के बाहर अगर कोई शख्स जी जी लिख देता है आर्मी हाउस, जी जी यानी यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहता है, जी अंदर कोई बंदर रहता हो, जी जी क्या फौज छोड़ेगी उसे? नहीं छोड़ेगी, नहीं। नहीं छोड़ेगी, एक ही घर है जिसके बाहर लिखा जा सकता है जी 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 आर्मी हाउस, जहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहता है। बेशक बेशक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, इसको लिखने देगा कोई? नहीं लिखने देगा, अगली गली में कोई लिख ले गवर्नर हाउस, जी 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 उसको भी पकड़ा जाएगा कि गवर्नर हाउस नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, उससे अगले रोड पे जाके आ जाए वजीर आला हाउस, जी जी को लिखने देगा? नहीं 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 पकड़े जाएंगे ना। बिल्कुल। इसके राइट है, जी वजीर आला हाउस का एक राइट है जहां वजीर आला रहता हो। बेशक बेशक, बेशक। बेशक तुमने कैसे लिख लिया? जी जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये ऐसा ही कोई शख्स जाली नोट चलाता पकड़ा जाए, जी पकड़ लेंगे, जी कहेंगे ये राइट सिर्फ असली नोट का है, बिल्कुल बिल्कुल जो फला फला अदारे से तैयार होके आता है, जी। बेशक स्टैंप पे होती है, सारा कुछ होता है, ये राइट उसका है। बेशक तुमने ये जाली नोट चलाया है, स्टेट बैंक का कानून है जी। कि उस जाली नोट को जला दिया जाता है। बेशक बेशक और इस्लाम का भी ये कानून है जी, कि जी। जाली नबी को जला दिया जाता है। बेशक 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 कोई शक नहीं, उसे भी मौत की घाट उतार उतार दिया दिया जाता है, बिल्कुल 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 इस तरह तो ये काम बहुत बिखर जाएगा ना। जी जी बिल्कुल। जी जी ऐसे यहाँ पे कलमा, वहां पे कलमा, वहां पे ये। अगर एक बंदा ही जी अपनी टूटी फूटी फैक्ट्री के बाहर जी। ये बोर्ड लगा दे, कोटा एटमी प्लांट, बिल्कुल जी क्या ये पुलिस रहने देगी? नहीं रहने देगी, नहीं नहीं और उससे आगे एक और कबाड़ खाना हो, उसके बाहर बोर्ड लगा दे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन,
جی یہ ان کی ذلت ہے نا بالکل ان اداروں کی. بالکل بالکل یہ خبیث کا بچہ ان کی کوٹا ایٹمی پلانٹ ہماری جان ہے. بے شک بالکل پاکستان میں انرجی کمیشن جو ہے وہ ہماری شان ہے. بے شک بالکل یہ اس بغیرت نے ان کے دو نام لے کے جی جی ان کے ناموں کی بے حرمتی کی ہے, بے شک بالکل بے شک بے عزتی کی ہے نا اس بے نے. شک بے بے شک شک بے شک ان دونوں کو گرفتار کیا جائے گا, ان کو لتر بولو بھی کیا جائے گا. بالکل بالکل، بالکل بالکل۔ بالکل ہم بھی حکومت سے کہتے ہیں جب تم ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تو ان قادیانیوں کو بھی پکڑو, ان کا بھی لتر بولا کرو. بالکل بالکل بالکل، بہت خوب بالکل۔ بہت خوب اندر سے ان کی اصلی شخصیات کو نکالو. بالکل بالکل بے شک یہ فراڈ ہے بہت بڑا ان کا. بالکل جی بالکل بالکل تو کلمہ طیبہ سے یہ مراد دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں لفظ محمد آئے جی۔ اس سے مراد تم نے مرزا قادیانی کو لینا ہے. استغفر اللہ یہ سارے قرآن میں بھی یہ چکر چلتا ہے, ہر یہ حدیث میں بھی یہ چکر چلتا ہے, یہ اس سے مراد لیتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ.